Hello viewers, welcome back to English Only Zone. Today we are going to study a chapter from our class 8th English book, that is Purvi, which is prescribed by NCERT. We have already covered two chapters from Unit 1, that is The Wit That Won Hearts and a concrete example. The chapter which we are going to study today is Wisdom Paves the Way, which is the third chapter from Unit 1. So let's not waste time and begin with the chapter. There are, first of all, the characters are given. The king of Ujjain, a young king. Then four young men, Ramdutt, Shivdutt, Hardutt and Devdutt. These are the four young men which are there in the story as characters. The merchant, two sentries, and the setting is a road leading to Ujjain. When the curtain rises, it's like a drama. So when the curtain rises, there is a road seen to the audience which is leading to Ujjain, visible in the distance. It is visible that the road is leading to Ujjain. Maybe a board is visible or some temple is visible because Ujjain is famous for Mahakal temple. Later, the king's court, adorned with rich tapestries, tall pillars and regal decor. The time is midday. And after the road, what is visible? The king's court is visible. Adorned with rich tapestries. It is decorated with rich tapestries. Tapestries क्या होते हैं? पहले ना थोड़ा हेवी क्लोथ वॉल पर हैंग किया जाता था और उस हैवी क्लोथ पर ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाई जाती थी. तो as today we have different types of paintings, different types of arts on a wall. So earlier times the people used to have those paintings on heavy clothes. So that was known as tapestries. Then tall pillars were there in the court and regal decor. It was a very dignified decoration in the court. The time of the setting is midday, means दोपहर का समय है. So scene 1 is the road to Ujjain. Four young men, Ramdutt, Shivdutt, Hardutt and Devdutt, are walking along a dusty road leading to Ujjain. So these people, Ramdutt, Shivdutt, Hardutt, Devdutt, are walking along on a dusty road leading to Ujjain. The road is dusty, बहुत धूल मिट्टी है उस पर, and it is leading to Ujjain. They appear travel worn but resolute. So these people, they appear travel worn. Travel worn का मतलब travel करके वो थक चुके हैं. But they are resolute. Resolute means determined. उन्होंने दृढ़ निश्चय कर रखा है that they have to complete their task for which they are traveling. Their eyes fixed on the city that looms ahead. And their eyes were fixed on the city which was visible ahead. जो कुछ समय आगे चलने के बाद उनको जो सिटी मिलेगी, and which is that city? उज्जैन. तो उस सिटी में पहुंचने के लिए वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है. The sun is high and the distant noise of the bustling city faintly reaches them. The sun is high because it is midday, maybe 12 noon. तो sun बिल्कुल ऊपर है सिर पर. And the distant noise of the bustling city. उज्जैन is a big city, एक अच्छी crowded city है, तो इसलिए वहाँ की जो noise है वो इन लोगों तक आ रही थी. So it was faintly reaching them. Faintly मतलब हल्की हल्की आवाज़ इनकी तरफ आ रही थी. Now Ramdutt, wiping his brow, he says, "We have journeyed far from home, yet the prospect of finding work still eludes us." So Ramdutt says, he was wiping his brow, अपना माथा पोंछते हुए वो बोलता है, "We have journeyed far from home." हम घर से बहुत ज़्यादा दूर आ गए हैं, लेकिन अब भी जो हमारा प्रोस्पेक्ट था, हमारा जो मोटिव था फाइंडिंग वर्क, मतलब वर्क ढूंढने के लिए ये लोग निकले थे. दे वर finding some work in the city of Ujjain, and that prospect still eludes us. It means that prospect was still difficult to be obtained. अभी भी उनको वहाँ पर कोई भी काम नहीं मिला था. तो these people, they were unemployed
और इनको कोई ना कोई वर्क चाहिए था, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम उज्जैन सिटी में जाकर अपने लिए कोई वर्क देखें। और अभी उज्जैन आया नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, और इस वजह से ये लोग कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा दूर हम ट्रेवल करके आ गए, लेकिन रास्ते में भी हमें हमारे लायक कोई काम नहीं मिला। हरदत्त सेज, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन सिंस वी लेफ्ट अ विलेज? कितना समय हो गया है हम लोगों को विलेज छोड़े हुए? मीन्स कितने दिन से वो ट्रेवल कर रहे हैं। आई बिलीव इट हैज़ बीन ओवर अ वीक, परहैप्स इवन लॉन्गर, शिवदत्त सेड। अब शिवदत्त कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है इट हैज़ बीन ओवर अ वीक, एक हफ्ते से भी ऊपर हो गया है। और परहैप्स का मतलब होता है शायद। इवन लॉन्गर, हो सकता है उससे भी ज़्यादा समय हो गया। मीन्स दे डिड नॉट इवन रियलाइज हाउ मेनी डेज दे हैव ऑलरेडी ट्रेवल्ड इन देयर डिटर्मिनेशन। वो इतना ज़्यादा डिटरमाइंड थे कि हमें काम ढूंढना है, कि उनको ये भी ध्यान नहीं रहा कि उन्होंने कितने दिन ट्रेवल कर लिया है। रामदत्त सेज 10 days टू बी प्रिसाइज। अगर हम प्रिसाइसली बोलें, एग्जैक्ट काउंट करके बोलें, तो 10 days वी हैड ट्रेवल्ड। एवरी डे फील्स लॉन्गर देन द लास्ट। और हर दूसरा दिन, मतलब हर जो नेक्स्ट डे आता है, वो हमें पिछले दिन से भी बड़ा लगता है। बिकॉज इट इज़ वेरी ऑब्वियस व्हेन द पीपल आर ट्रैवलिंग, और उनको पैदल जाना है, दे आर ट्रैवलिंग बाय फुट, ऑन देयर फुट, एंड दे हैव नॉट फाउंड एनी मोटिव येट कि वो किस लिए ट्रैवल कर रहे हैं। उनको पता था काम ढूंढना है, लेकिन अभी तक उनको कोई वर्क नहीं मिला है, तो हर निकलता हुआ दिन उनको भारी लगता था पहले वाले दिन से, कि इट इज़ अ रियली अ लॉन्गर डे और इट इज़ रियली अ हैवी डे। देवदत्त सेज 10 days are but a short span in the grand scheme of things. Now देवदत्त एक ऐसा पर्सन था जो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक था, मीन्स पॉजिटिव थिंकिंग वाला पर्सन था। तो वो कहते हैं कि 10 days are but a short span in the grand scheme of things. जब हम कोई बड़ा काम करने के लिए सोचते हैं, या जब हम कोई बड़ा काम करने जा रहे होते हैं, तो 10 days उसके लिए इन्वेस्ट करना इतना भी बड़ा कोई इशू नहीं है। 10 days बहुत ज़्यादा दिन नहीं होते हैं उस बड़े काम के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। We may still have many more roads to wander before we find employment befitting all four of us. और उसने कहा हो सकता है हमें और भी कई रोड्स पर वॉन्डर करना पड़े। वॉन्डर मीन्स घूमना पड़े, बिफोर वी फाइंड एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल फोर ऑफ अस। बिफिटिंग ऑल फोर ऑफ अस, बिफिटिंग मीन्स हमारे लायक, हमें फिट करती हुई ऐसी कोई एम्प्लॉयमेंट जो हम चारों के लायक हो, उसे ढूंढने में हो सकता है हमें और भी बहुत सारी रोड्स को ट्रेवल करना पड़े। रामदत्त says, if only we could secure an audience with the king of Ujjain, I'm confident he would recognize our talents and appoint us to his service. अब रामदत्त कहते हैं, if only we could secure an audience with the king of Ujjain. Now king of Ujjain के बारे में हमने पढ़ा था, he was a young king. और जितना भी यंग ब्लड होता है ना, वो ज़्यादा एंथुसियास्टिक होता है, वो ज़्यादा अच्छे से काम करने के बारे में सोचता है ना। आई एम नॉट कंप्लेनिंग कि जो ओल्ड ब्लड होता है वो ऐसा नहीं करता या नहीं करना चाहता है, बट यंग ब्लड इज़ मोर एंथुसियास्टिक, और वो चाहते हैं कि जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो उसको ज़्यादा अच्छे से फुलफ़िल करें। तो सेम वॉज विद द किंग ऑफ उज्जैन। तो वो कहते हैं कि हमें अगर किंग ऑफ उज्जैन से को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल जाए, वी कुड सिक्योर एन ऑडियंस, मीन्स हमें अगर किंग ऑफ उज्जैन को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल जाए, आई एम कॉन्फिडेंट ही वुड रिकॉग्नाइज आवर टैलेंट्स। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि वो हमारे टैलेंट्स को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, एंड अपॉइंट अस टू हिज सर्विस, और हमें अपनी सर्विस में रख भी लेंगे। मीन्स इन लोगों के पास कुछ ऐसा टैलेंट होगा जो किंग ऑफ उज्जैन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो शिवदत्त says, I share your belief. शिवदत्त also agrees to रामदत्त and he says कि हाँ, मैं तुम्हारी बात पर, तुम्हारी इस बिलीफ को मानता हूँ। देवदत्त says, indeed we ought to be united in this hope. अब देवदत्त कहते हैं कि यस, हमें इस होप में तो यूनाइटेड रहना ही पड़ेगा, हमें पूरी उम्मीद के साथ इस काम को करना होगा। दैट इज़ वाई वी प्रेस ऑन टूवर्ड्स उज्जैन, और इसीलिए तो हम उज्जैन की तरफ आए हैं। हम उज्जैन की तरफ क्यों आए हैं? क्योंकि हमें उम्मीद है कि किंग ऑफ उज्जैन हमारे टैलेंट्स को पहचानेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो हमें कोई जॉब भी दे देंगे। नाउ हरदत्त सेज, पॉजिंग थॉटफुली। अब वो थोड़ा सोचते हुए
पॉज करते हुए हल्के हल्के सोचते हुए बोल रहा है, गेनिंग एन ऑडियंस विद अ किंग इज़ नो सिंपल टास्क। अब किंग कोई ऐसा पर्सन तो है नहीं जो हर किसी से मिल ले। तो हरदत्त कहते हैं कि ऑडियंस, किंग को अपनी ऑडियंस बनाना या किंग को अपना टैलेंट शोकेस करना इतना भी आसान टास्क नहीं है। इट्स नॉट सो सिंपल। वी नीड टू डिवाइज अ स्ट्रेटेजी एंड वी नीड टू डिवाइस मीन्स थिंक ऑफ और टू प्लान। हमें कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनानी ही होगी। Devdutt says, let us reach the city gates first. We can deliberate once we are closer. Now, as I told you earlier, देवदत्त थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक नेचर का पर्सन था। तो उसने कहा कि ठीक है, पहले सिटी गेट्स तक तो पहुंच जाएं, उसके बाद वहाँ जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग वी विल डेलिब्रेट वंस वी आर क्लोजर टू द गेट्स। मीन्स वी विल थिंक केयरफुली अबाउट द सिचुएशन देयर, और तब हम कोई प्लान या स्ट्रेटेजी अपनी डेवलप कर लेंगे। As they walk, रामदत्त notices something on the ground. अब जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, रामदत्त noticed something which was there on the ground. Shivdutt says, look there friends, a camel has passed this way. The tracks are fresh. अब शिवदत्त कहते हैं, look here friends, यहाँ से एक कैमल निकल कर गया है. The tracks are fresh. जो कैमल के चलने से जो मार्क्स बन गए थे, उसके जो फुट के जो मार्क्स बन गए थे, उसके जो पॉज थे उसके मार्क्स बन गए थे, वो बिल्कुल फ्रेश थे. रामदत्त सेज स्टडिंग द ट्रैक्स. अब उन ट्रैक्स को वो पढ़ते हुए, मतलब पढ़ना मतलब उनको ऑब्जर्व करते हुए बोलता है. येस, लेट अस ऑब्जर्व देम एज वी कंटिन्यू, दे मे टेल अस मोर दैट मीट्स द आई. और वो कहते हैं कि इनको हमें और अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो हम सामने से देखते हैं वो हमें इतने अच्छे से समझ में नहीं आता जितना हमें उस चीज़ को केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद समझ में आता है. द फोर मैन कंटिन्यू वॉकिंग, ओकेजनली स्टॉपिंग टू एग्जामिन द कैमल्स ट्रैक्स. अभी जो फोर मैन थे, इन्होंने अपनी वॉकिंग कंटिन्यूड रखी और वो ओकेजनली रुक रहे थे कैमल के ट्रैक्स को एग्जामिन करने के लिए कि कैमल कैसे चल रहा था. They scrutinize every detail, exchanging glances, but saying little. अब इन लोगों ने एक एक डिटेल को स्क्रूटनाइज किया. स्क्रूटनाइज मीन्स बहुत केयरफुली उस चीज़ को देखा. कैमल के चलने के जो मार्क्स बने थे, उन मार्क्स को स्टडी करा, ऑब्जर्व करा कि कैमल कैसे चल रहा था. और एक दूसरे को भी वो देखते जा रहे थे, लेकिन शायद ही उन्होंने अपने एक दूसरे से कुछ बात करी. रामदत्त says, I've discovered something peculiar about this camel. अब रामदत्त कहते हैं, मैंने इस कैमल के बारे में कुछ peculiar मीन्स कुछ खास चीज़ डिस्कवर करी है. शिवदत्त says, so have I. अब शिवदत्त कहते हैं, हाँ मैंने भी करी है. हरदत्त says, I too have noticed a strange detail. हरदत्त ने भी एक strange detail उस कैमल के बारे में नोटिस करी. देवदत्त says smiling, it seems each of us has learned something unique. Yet I believe my discovery is unlike any of yours. अब देवदत्त कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि हम में से हर किसी ने इस कैमल के बारे में कुछ ना कुछ नया ऑब्जर्व करा है, और फिर भी मैं इस बात पर बिलीव करता हूँ कि जो चीज़ मैंने डिस्कवर करी है ना, वो तुम तीनों की डिस्कवरी से थोड़ी सी अलग होगी. हरदत्त सेज, लेट अस रेस्ट बीनीथ अ लार्ज ट्री एंड शेयर आवर फाइंडिंग्स, बट वेट, समवन अप्रोचेज इन हेस्ट. अब हरदत्त कहते हैं कि एक लार्ज ट्री था, उसके नीचे हम रेस्ट कर लेते हैं और वहाँ पर हम अपनी फाइंडिंग्स को शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हमने क्या देखा. बट वेट, समवन अप्रोचेज इन हेस्ट. उसने कहा लेकिन रुको, कोई यहाँ पर बहुत जल्दबाजी में आ रहा है, कोई बहुत जल्दी आ रहा है. शिवदत्त पियरिंग अहेड, आगे झांकता हुआ बोलता है, इट अपीयर्स टू बी अ मर्चेंट रनिंग एज इफ पर्सुएडेड बाय ट्रबल. वो कहते हैं मुझे कोई मर्चेंट दिख रहा है और वो ऐसे भाग रहा है जैसे उसके पीछे कोई परेशानी भाग रही है, कोई ट्रबल उसके पीछे भाग रही है. परस्यूड मीन्स चेस्ड बाय, कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई ट्रबल उसका पीछा कर रही है. जब कोई हमारा पीछा करता है, उससे बचने के लिए हम और ज़्यादा तेज़ भागते हैं ना. सो द सेम मर्चेंट वॉज रनिंग इन द सेम मैनर. रामदत्त सेज,
A merchant indeed, and judging by his countenance, he has lost something of great value. Perhaps his camel. अब रामदत्त कहते हैं हाँ एक मर्चेंट ही है और उसकी काउंटेनेंस, काउंटेनेंस मीन्स उसको देखकर, उसकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उनको देखकर ये बात समझ में आती है कि उसने कोई खास वैल्यू की अपनी चीज़ खोई है। मीन्स कोई एक ऐसी चीज़ उसने खोई है जिसकी बहुत वैल्यू है, और मे बी वो उसका कैमल हो सकता है, क्योंकि इनको कैमल के मार्क्स नज़र आए थे ना, ट्रैक्स। द मर्चेंट पैंटिंग एंड डिस्ट्रेस्ड, पैंटिंग मीन्स वो हाफ रहा था, सांस ले रहा था तेज़ी तेज़ी से। ही वॉज डिस्ट्रेस्ड, ही वॉज सो वरिड। रीचेस द ग्रुप, वो इन लोगों के पास पहुंचता है, इन 4 जो ये लोग थे इस ग्रुप में, इनके पास पहुंचता है। ही पॉजेज टू कैच हिज ब्रेथ, फिर वो 1 मिनट रुकता है ताकि उसको सांस आ जाए, वो सांस ले पाए। देन एड्रेसेस देम एंग्जियसली, और फिर इन लोगों से वो बात करता है थोड़े से टेंशन में आकर। मर्चेंट सेज ब्रेथलेसली, हाफते हुए बोल रहा है, गुड डे काइंड सर्स। ऑल फोर से गुड डे ब्रदर, तो सब विश करते हैं उसको गुड डे ब्रदर। Merchant says, I seek your help. My camel has gone astray. Have you by chance seen it? अब मर्चेंट उनसे कहते हैं मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मेरा जो कैमल है ना वो सही रास्ते से भटक गया है। एस्ट्रे मीन्स वो रॉन्ग पाथ में चला गया है। ही हैज़ गॉन इन सम रॉन्ग डायरेक्शन। हैव यू बाय चांस सीन इट, क्या आपने देखा है उस कैमल को? नाउ रामदत्त सेज, इज़ योर कैमल लेम इन 1 लेग बाय एनी चांस? तो पूछते हैं कि क्या तुम्हारा जो कैमल था वो लेम है, 1 लेग से लेम है। 1 लेग से लेम मीन्स उसके 1 लेग में कुछ प्रॉब्लम है। मर्चेंट सरप्राइज्ड, यस यस इट इज़। अब मर्चेंट तो सरप्राइज हो गया कि इसको मेरे कैमल के बारे में कैसे पता। उसने कहा यस यस, हाँ हाँ सच में वो लेम है। नाउ शिवदत्त सेज, इज़ इट ब्लाइंड इन द राइट आई? क्या वो राइट आई से ब्लाइंड है? क्या उसको राइट आई से कुछ दिखाई नहीं देता? मर्चेंट, प्रिसाइसली इट इज़ ब्लाइंड इन 1 आई, द राइट वन एज यू से। मर्चेंट कहता है प्रिसाइसली, एग्जैक्टली, वो उसको एक आई से दिखाई नहीं देता, वो राइट आई ही है, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही है। नाउ हरदत्त सेज, एंड डज इट हैव अ शॉर्ट टेल? क्या उसकी टेल शॉर्ट है? मर्चेंट नाउ एस्टॉनिश्ड, वो बहुत सरप्राइज हो गया, चौंक गया बहुत ज़्यादा। यू डिस्क्राइब इट परफेक्टली, येस इट हैज़ अ शॉर्ट टेल। तो उसने कहा हाँ आप लोग बिल्कुल सही तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हो, उसकी एक शॉर्ट टेल है। नाउ देवदत्त सेज, टेल मी सर, हैज़ इट नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम अ पेन इन द स्टमक? तो उसने कहा कि सर मुझे बताओ कि क्या उसके पेट में दर्द तो नहीं हो रहा था? मर्चेंट टेकन अबैक, अब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। ही वॉज टेकन अबैक, हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट? द पुअर क्रीचर हैज़ बीन अनवेल फॉर 2 वीक्स नाउ। वो कहते हैं कि आप लोगों को ये बात पता भी कैसे है उसके बारे में? वो बेचारा कैमल वो पिछले 2 हफ्तों से बीमार था। श्योरली यू आर अ हीलर, आई विल ग्लैडली पे योर फी इफ़ यू कैन क्योर इट। तो उसने कहा श्योरली आप हीलर हैं, आप हमारी परेशानी को दूर करने वाले हैं, और मैं आपको आपकी फ़ी भी पे करूँगा जब आप मुझे मेरी परेशानी से दूर कर देंगे, आप मेरी प्रॉब्लम को क्योर कर देंगे। बट टेल मी वेयर इज़ माई कैमल? तो कहता है कि लेकिन बताओ तो मेरा कैमल कहाँ पर है? नाउ वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी डू नॉट नो वेयर इट इज़। अब वो कहता है वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है ये बात इन्फॉर्म करते हुए कि हमें पता नहीं कि आपका कैमल कहाँ पर है। शिवदत्त सेज, वी हैव नॉट सीन योर कैमल नॉट इवन वंस। नाउ शिवदत्त कहते हैं कि हमने तुम्हारा कैमल एक बार भी नहीं देखा। वी हैव नॉट सीन योर कैमल, एक बार भी नहीं देखा। मर्चेंट सेज इंडिग्नेंट, वो मर्चेंट इंडिग्नेंट होते हुए कहता है, गुस्सा होते हुए कहता है, एंग्री होते हुए कहता है, हाउ कैन दैट बी? यू स्पीक ऑफ माई कैमल एज इफ इट स्टूड बिफोर यू, येट यू डेयर टू क्लेम नॉट टू हैव सीन इट। तो मर्चेंट कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरे कैमल के बारे में इतने अच्छे से बता रहे हैं एज इफ इट वॉज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, और अब आप कह रहे हैं कि आपने उसको देखा नहीं है। यू आर क्लेमिंग दैट यू हैव नॉट सीन। यू आर डिसीवर्स, आप लोग डिसीवर्स हो। डिसीवर्स मीन्स धोखा देने वाले। यू आर चीटर्स, यू मस्ट हैव स्टोलन इट एंड सोल्ड इट ऑफ। आपने उस कैमल को चुराया होगा और फिर उसको बेच दिया होगा। आई विल टेक दिस मैटर टू द किंग हिमसेल्फ, और मुझे ये मैटर किंग के पास लेकर जाना है। देवदत्त सेज,
You are free to do as you wish, sir. If the king desires our presence, we shall be waiting under that banyan tree yonder. अब यही तो ये लोग चाहते थे, इसीलिए तो उन्होंने ये सब करा था. देवदत्त सेज कि ठीक है, जैसा आपका मन करे आप वैसा करें. यू आर फ्री टू डू एज यू विश. इफ द किंग डिज़ायर्स आर प्रेजेंस, अगर किंग चाहेंगे कि हम उनके सामने प्रेजेंट हों, वी शैल बी वेटिंग अंडर दैट बैनियन ट्री यॉन्डर. हम वहाँ उस बैनियन ट्री के नीचे वेट कर रहे होंगे. यॉन्डर मीन्स ओवर देयर, समवेयर ओवर देयर. Now merchant says, I do not trust your words. I will not leave you here to slip away. You shall come with me to face the king. अब मर्चेंट कहता है, नो नो, आई डोंट ट्रस्ट योर वर्ड्स. मैं आपको यहाँ पर छोड़कर नहीं जाऊँगा. आप तो वैसे ही धोखा देते हो. यू आर ऑलरेडी डिसीवर्स. यू हैव ऑलरेडी stolen my camel and sold it off to someone. And how can I trust you to have you here under the banyan tree and me going into the court to complain regarding whatever cheating you have done with me? तो उसने कहा, नो, यू हैव टू कम विद मी टू फेस द किंग. Now all four were really very happy. They said, okay, very well, we shall go to the king. They follow the merchant towards the city gates. अब उन्होंने merchant को follow करा city gates की तरफ. As they arrive at the palace, the merchant speaks urgently to a sentry. अब merchant ने urgently means तुरंत ही sentry से बात करी. The sentry leads the merchant inside. और वो जो sentry था वो merchant को अंदर ले गया. So this was all in the scene 1, that is the road to Ujjain. ये सब कुछ रास्ते में ही हुआ है. The second scene is of the king's court, which we are going to cover in the next video. I hope you have understood whatever we have studied here in this video. If you have any doubts, you can write them in the comment box. I will be happy answering you and solving your doubts. अगर आपको explanation पसंद आया, please do not forget to give it a thumbs up, that is to press the like button. Share the video with your friends. If you have not yet subscribed the channel, please subscribe to it and ask your friends also to subscribe. Keep learning, keep growing. Thank you.